embodied energy is the total energy required for the extraction, processing, manufacture, and delivery of building materials to the building site. Energy consumption produces CO2, which contributes to greenhouse gas emission. So embodied energy is considered as indicator of the overall environmental impact of building material and system. तो embodied energy क्या होता है? embodied energy जो है वो हमें अवॉइड करना होता है. embodied energy means कि जब हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने के लिए बिल्डिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स हम यूटिलाइज करेंगे और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा और उसके और बिल्डिंग का फिनिशिंग होगा. तो बिल्डिंग में जो मटेरियल हम यूज करने वाले हैं उन मटेरियल्स का जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है तब ये कोशिश करना चाहिए कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मटेरियल which we are going to use in the construction of our building. जो मटेरियल हमें अपने बिल्डिंग में आगे चल के यूज करना है उन मटेरियल का जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस समय भी कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन हो. जब वो मटेरियल हम साइट पर लेकर आ रहे हैं जो हमें अपनी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है, तो during traveling, during providing that material from the manufacturing point to the construction site, the production of carbon या emission of carbon dioxide and carbon monoxide like various greenhouse gases should be very less. ठीक. या फिर जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क भी हमें अवॉइड करना है. तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज embodied energy. Embodied energy is the total energy required for the extraction, processing, manufacture and delivery of building materials to the building site. तो जो embodied energy है ये टोटल एनर्जी होती है जो हमें एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर और डिलीवरी टाइम में बिल्डिंग में जो लगती है. और इसमें एनर्जी कंजम्पशन प्रोड्यूसेस CO2. जो इसमें एनर्जी कंजम्पशन है वो प्रोड्यूस करता है CO2 which contributes to greenhouse gas emission. So embodied energy is considered an indicator of the overall environmental impact of the building material and the system. तो हमें क्या होता है embodied energy को रिड्यूस करना होता है. Then why we should reduce embodied energy? Energy consumption during manufacturing can give an approximate indication of the environmental impact of the material, and for most building materials the major environmental impact occur during the initial process. तो जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो जब बिल्डिंग का इनिशियल स्टेज होता है उस समय में उन मटेरियल्स का सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. द टोटल अमाउंट ऑफ embodied energy may account for 20% of the building energy. Used to reduce embodied energy can significantly reduce the overall environmental impact of the building. तो जितना भी बिल्डिंग में हमें एनर्जी कंजम्पशन होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, तो एक बिल्डिंग का ओवरऑल तैयार होने में उसमें लगने वाले मटेरियल से, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन से, फिर कंस्ट्रक्शन वर्क, फिनिशिंग वर्क, कंप्लीट बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग जो हम बनाते हैं उसमें उसी में ये भी कॉन्सेप्ट आएगा. तो इसमें जो होता है टोटल जितना एनर्जी कंजम्पशन होता है उसका 20% अमाउंट embodied एनर्जी का होता है. So reducing embodied energy can significantly reduce the overall environmental impact of the building. तो अगर हम embodied एनर्जी को रिड्यूस कर सकें, embodied एनर्जी को अवॉइड कर सकें, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ेगा.
ठीक, तो एम्बॉयडर्ड एनर्जी क्या हो गया? एम्बॉयडर्ड एनर्जी हमारा हो गया, एम्बॉयडर्ड एनर्जी इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, manufacture and delivery of building materials to the building site. Energy consumption produces CO2, which contributes to greenhouse gas emission. So embodied energy is considered an indicator of the overall environmental impact of the building material and system. या आप कह सकते हो the total amount of embodied energy may account for 20% of the building's energy use. So reducing embodied energy can significantly reduce the overall environmental impact of the building. तो इसमें चूंकि जो embodied energy है, ये सारा कंजम्पशन किसका होता है इसमें? एनर्जी कंजम्पशन CO2 का होता है। तो जितना हम कोशिश करके embodied energy को during manufacturing of our material which we are going to use in our project or uh, during the construction work of the building, जितना भी हो सके उतना हम embodied energy को अवॉइड करेंगे। और लगभग जितना कंजम्पशन एनर्जी का होता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मटेरियल्स टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड ड्यूरिंग द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जितना ओवरऑल एनर्जी का कंजम्पशन होता है उसमें लगभग 20% हिस्सा जो है वो हमारा एम्बॉयडर्ड एनर्जी का होता है। तो अगर हम एम्बॉयडर्ड एनर्जी को अवॉइड करेंगे या इसको रिड्यूस करेंगे तो इससे हमारा ओवरऑल एक बेटर इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे कम से कम होगा। नेक्स्ट इज हाउ इज एम्बॉयडर्ड एनर्जी मेजर्ड? एम्बॉयडर्ड एनर्जी का मेजरमेंट कैसे करते हैं? Embodied energy is measured as the quantity of non-renewable energy per unit of building material, component or system. It is expressed in megajoules or gigajoules per unit weight, kilogram or tons or area. But the process of calculating embodied energy is complex and involves numerous sources of India. तो embodied energy को कैलकुलेट करने का कोई बहुत ही अच्छा साधन अभी नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम एनर्जी रिसोर्सेज जो यूज कर रहे हैं वो हम चाहें तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जगह हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करें। तो एम्बॉयडर्ड एनर्जी का मेजर क्वांटिटी हम करते हैं जो मैक्सिमम टाइम हम ऐसे करते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर यूनिट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल और कंपोनेंट और द सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं, तो कितना हम यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम मेजर कर सकते हैं कि एम्बॉयडर्ड एनर्जी हमारी कितनी यूज हो रही है। क्योंकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हम यूज करेंगे तो जरूर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड लाइक ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। तो रिड्यूसिंग एम्बॉयडर्ड एनर्जी, बिल्डिंग शुड बी डिजाइन्ड and materials selected to balance embodied energy with factors such as climate, availability of material, and transport cost. Lightweight building materials often have lower embodied energy than heavyweight materials. But in some situations, lightweight construction may result in higher energy use. For example, where heating or cooling requirements are high, this may raise the overall energy use of the building. तो एम्बॉयडर्ड एनर्जी में क्या होता है? जनरली लाइट वेट जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल्स यूज होते हैं उनमें जनरली क्या होता है, एम्बॉयडर्ड एनर्जी जो है लोअर होती है और जो हैवी वेट मटेरियल यूज करते हैं उनमें ज्यादा होती है। बट सम टाइम लाइट वेट कंस्ट्रक्शन में रिजल्ट इन हायर एनर्जी यूज। उसका एग्जांपल दिया है जहां पे हीटिंग और कूलिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है तो इसमें जो एनर्जी का यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बिल्डिंग में। तो दिस इज हाउ एम्बॉयडर्ड एनर्जी कैन बी रिड्यूस। तो
I think it will be now clear what is embodied energy and why we should reduce embodied energy and how embodied energy is measured, and reducing embodied energy is very much important in the construction of a building on the basis of green architecture building concept. When selecting building materials, the embodied energy should be considered with respect to. तो जब बिल्डिंग मटेरियल हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो एम्बॉयडर्ड एनर्जी को ध्यान में रखते हुए ही मटेरियल को हम परचेज करेंगे और फॉर द यूटिलाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग which we are going to make or build on the concept of green building architecture. First one is the durability of building materials. Building material की durability अच्छी होनी चाहिए, इसकी sustainability होनी चाहिए, long lasting material होना चाहिए. Second one is how easily materials can be separated. कितनी आसानी से material separate किए जा सकते हैं. Third one is use of locally sourced material. जैसे मैंने बताया था कि easily available, पास में shortest path पे जो material available है उसको लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि during transportation भी हमारा खर्चा तो बढ़ेगा ही ट्रांसपोर्टेशन का, प्लस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन चूंकि वो आएगा डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी से, तो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी उतना ज्यादा होगा. यूज ऑफ रिसाइकिल्ड मटेरियल, क्योंकि अगर हम फ्रेश मटेरियल यूज करेंगे तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा कंजम्पशन होगा तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी ज्यादा होगा. अगर रिसाइकिल्ड मटेरियल यूटिलाइज करेंगे तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी कम से कम होगा. नेक्स्ट इज स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड साइज ऑफ मटेरियल. तो स्टैंडर्ड साइज के मटेरियल यूज करेंगे. अवॉइडिंग वेस्ट, वेस्ट कम से कम करेंगे, क्योंकि वेस्ट ज्यादा से ज्यादा होने से एनर्जी लॉस भी ज्यादा से ज्यादा होगा. तो ट्राई टू अवॉइड वेस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन बिल्डिंग. Selecting materials that are manufactured using renewable energy sources. ऐसे मटेरियल अपनी ग्रीन बिल्डिंग में हम यूज करें जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से, क्योंकि हम अभी तक पढ़ चुके हैं और हमें पूरी जानकारी हो चुकी है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जरूर थोड़ा कम या ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस इमिशन जरूर होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या और बहुत सारी केमिकल गैसेस रिलीज होती हैं. लेकिन जब हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो वो कम से कम पोल्यूशन होता है. तो इसलिए जब हम सिलेक्शन करें मटेरियल्स का फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर बिल्डिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर, so we should try to get the materials which are manufactured by using renewable energy sources. तो ये लास्ट पॉइंट हो गया इसका. When selecting building materials, the embodied energy should be considered with respect to the durability of building materials, how easily materials can be separated, use of locally sourced material, use of recycled materials, specifying standard size of materials, avoiding waste, selecting materials that are manufactured using renewable energy sources. Now, the last topic of this subject, जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा इसका लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है एनर्जी ऑडिट फॉर बिल्डिंग्स. जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एनर्जी ऑडिट किसी भी बिल्डिंग का बहुत जरूरी है. वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो सकती है, वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो सकती है. तो बिल्डिंग का ऑडिट कराया जाता है. ऑडिट में ये फाइंड आउट किया जाता है पहले जो इस तरह की बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्री होती हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं ऑडिट ऑफ एनर्जी का, तो उनके पास पहले जिसको भी अपनी बिल्डिंग का ऑडिट कराना है वो एप्लीकेशन देगा, वो आएंगे,
और वो देखेंगे कि पर मंथ आपका कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। पर एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, तो कितने तरीके से आपका एनर्जी कंजम्पशन कितना हो रहा है। फिर वो आके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर बेस पे जा करके देखेंगे कि कितना किस इंस्ट्रूमेंट में कितनी एनर्जी लग रही है, कितनी एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। तो वो पूरा एक फॉर्मेट तैयार होता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि भाई इतने मेगावाट बिजली आपकी लग रही है, इतने यूनिट बिजली आपकी लग रही है, जिसको कट शॉर्ट करके हम इतने यूनिट कर सकते हैं, या इतना पानी का कंजम्पशन आपके यहाँ हो रहा है, इतना पानी का। तो बहुत सारे रिसोर्सेज उसमें होते हैं। वो हमारी बहुत सी आदतों में सुधार होता है। पहला पॉइंट ये बताते हैं कि भाई जैसे क्लासरूम में जब क्लासेस नहीं चल रहे हैं, स्टूडेंट नहीं है, तो फैन और बल्ब और ट्यूब बंद होने चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। हम अपनी आदतों को सुधार करके भी बहुत सारा एनर्जी सेव कर सकते हैं। बहुत से लोगों को देखो, पानी जो है जाएंगे हाथ धोएंगे, नल खोल के तो पानी बहता रहता है, तो वाटर एनर्जी का लॉस होता रहता है। ऐसे ही टॉयलेट का पानी जो हाथ वॉशिंग के बाद जो निकलता है, उसको इरिगेशन पर्पस। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके के एनर्जी ऑडिट होते हैं। ठीक है, द एनर्जी ऑडिट इन ए बिल्डिंग is a feasibility study, for it not only serves to identify energy use among the various services and to identify opportunities for energy conservation, but it is also a crucial first step in establishing an energy management program. The audit will produce the data on which such a program is based. The study should reveal to the owner, manager, or management team of the building the options available for reducing energy waste, the cost involved, and the benefit achievable for implementing those energy conserving opportunities. तो जो टीम आती है एनर्जी ऑडिट करने, वो पूरा सर्वे करती है, एनर्जी ऑडिट करती है, और जो बिल्डिंग ओनर होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है बिल्डिंग का, उसको इन्फॉर्म करते हैं, उसको पूरा डेटा, एक पूरा उनके पास फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में डेटा बनाते हैं कि आपके पर्टिकुलर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इतना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, और इसको इस तरीके से वो तरीके बताते हैं कि किन किन तरीकों से इस एनर्जी को रोका जा सकता है और एनर्जी कंजर्व की जा सकती है, या एनर्जी कंजर्विंग अपॉर्चुनिटीज ECO वो बताते हैं कि आपके यहाँ इतनी एनर्जी कंजर्विंग अपॉर्चुनिटीज है, और इन अपॉर्चुनिटीज को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये होता है एनर्जी ऑडिट फॉर बिल्डिंग। तो इसमें स्टेजेस है, स्टेजेस इन एनर्जी प्रोग्राम। द एनर्जी ऑडिट may range from a simple walk through survey at one stream to one that may span several phases. These phases include a simple walk-through survey followed by monitoring of energy use in the building services, and then model analysis using computer simulation of building operation. तो उनकी जो टीम आती है वो सर्वे करती है। कई लोग रहेंगे, जैसे मान लीजिए हम डिपार्टमेंट वाइज सर्वे करते हैं, तो कुछ लोग सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, कुछ कंप्यूटर साइंस में, कुछ तो पहले बीटेक की बिल्डिंग में सर्वे हो जाएगा। इसी सेम तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिप्लोमा की बिल्डिंग में हो गया, फार्मा बिल्डिंग में हो गया, वर्कशॉप में हो गया, डिफरेंट लैबोरेटरीज और डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से सेक्शन सेक्शन में अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि कितना पर मंथ आपका एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, और फिर उस पे वो रिसर्च करके डिसाइड करेंगे कि कौन से ऐसे मेजर्स लिए जाएं कि पर्टिकुलर फेजेस में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, एक एक डिपार्टमेंट के हेड से बात करेंगे या लेबोरेटरी का जो हेड है उससे बात करेंगे कि भाई आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, कितनी आपकी एनर्जी लग रही है, अच्छा इसको अगर ऐसे करें तो इतनी एनर्जी बच सकती है। तो
उस तरीके से फिर वो एक रिजल्ट एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि इस तरीके से आप एनर्जी कंजर्वर अपॉर्चुनिटीज है आपके पास और आप एनर्जी अपनी बचा सकते हो। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट इज therefore directly related to the stages or degree of sophistication of the energy management program and the cost of the audit exercise. The second is to improve efficiency of energy conserver equipment and the reduce energy use by proper operation and maintenance. For this reason, it is necessary to reduce the number of operating machine and operating hours according to the demands of the load and fully optimize equipment operation. ठीक है, तो जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जो भी हम मशीनरी यूज कर रहे होते हैं उस बिल्डिंग में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो वो बताते हैं कि आप ये मशीन 8 आवर्स मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि 8 आवर्स आपको जब ये 6 घंटे यूज करके आपका काम चल सकता है, तो व्हाई यू आर यूजिंग दीज पर्टिकुलर मशीन फॉर 8 आवर्स। तो मान लो अगर 100 मशीन्स लगी हुई है और 2 घंटा हम कम करके उनका यूज 6 घंटे में ही अगर हमारा काम चल सकता है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा मशीन का और 2 घंटा पर मशीन पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बच जाएगा। तो ये तरीका है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट इज देयरफॉर डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेजेस और डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन ऑफ द एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड द कॉस्ट ऑफ द ऑडिट एक्सरसाइज एंड द सेकंड स्टेज is to improve efficiency of energy conversion equipment and to reduce energy by use by proper operation and maintenance। जो एनर्जी कन्वर्जन इक्विपमेंट है उनका प्रॉपर ऑपरेशन और मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होना चाहिए, इससे ना होने पर भी एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज नेसेसरी to reduce the number of operating machine and operating hours according to the demand of the load and fully optimize equipment operations. Hence, the ECO would include the following. ECO क्या है? Energy Conservation Opportunities, एनर्जी बचाने के जो मौके हैं। तो ECO would include the following. First one is building equipment operation। जो बिल्डिंग में जो भी हम इक्विपमेंट का जो भी ऑपरेशन है, जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उसको किस तरीके से ऑपरेशन करना है, किस तरीके से उसको ऑपरेट करना है, कितने आवर्स में हमारा काम चल सकता है और हम कितने आवर्स यूज कर रहे हैं। हो सकता है कम आवर्स यूज करके कम टाइम तक उसको यूटिलाइज करके हम अपना काम चला सकते हो, तो उससे हमारा एनर्जी कंजर्वेशन होगा। बिल्डिंग एनवेलप, जो बिल्डिंग का आउटर एरिया है, जो बिल्डिंग का बाहर का एरिया है। अब जैसे बिल्डिंग एनवेलप में मैंने आपको ग्रीन बिल्डिंग हाउस में भी बताया था कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम शीशे का यूज करके सनलाइट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो सनलाइट यूज करने से क्या होगा कि हम जो है हमारा ट्यूबलाइट बल्ब का इस्तेमाल डे लाइट के टाइम में हमको नहीं करना पड़ेगा, इससे हमारा एनर्जी कंजर्वेशन होगा। या वेंटिलेशन की सुविधाएं हम ऐसे दें और बिल्डिंग के चारों ओर इतने ग्रीनरी करके रखें कि हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना बढ़ने पाए। और इंसुलेशन का भी हम प्रॉपर यूज करें। 2 तरीके के इंसुलेशन होते हैं, पेपर इंसुलेशन एंड वुडन इंसुलेशन। तो these two type insulation we can use to avoid heating inside the building। तो बहुत अगर गर्मी पड़ रही है और बिल्डिंग के चारों ओर ग्रीनरी है हमारे और हमने इंसुलेशन भी यूज कर रखा है और वेंटिलेशन की ऐसी सुविधा है, तो हो सकता हो we can avoid the use of AC and cooler in the inside the building। नेक्स्ट है एयर कंडीशनिंग एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन इक्विपमेंट एंड सिस्टम। ये भी उसी में आ गया कि एयर कंडीशनिंग और मैकेनिकल वेंटिलेशन इक्विपमेंट सिस्टम है, उसको जरूरत के हिसाब से यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, अभी आदतें हम लोग की खराब होती है, मार्च खत्म हुआ नहीं कि एसी सब लोग चला देते हैं, जबकि अगर बिल्डिंग के चारों ओर ग्रीनरी है तो वी कैन अवॉइड यूजिंग एयर कंडीशन।
और अगर एयर कंडीशन यूज भी कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम उसको यूज कर रहे होते हैं तो हमें कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। तो यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एयर कंडीशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन इक्विपमेंट सिस्टम, इसको प्रॉपर यूज करके हम कूलिंग अपनी बिल्डिंग का कर सकते हैं और हमारा कम से कम एनर्जी कंजम्पशन होगा। नेक्स्ट इज लाइटिंग सिस्टम। अब लाइटिंग सिस्टम में मान लो वो सर्वे करने आएंगे तो देखेंगे जगह जगह अभी पुराने ही, अभी मैं कॉलेज में अपने देख रहा हूँ कि जिस क्लासरूम में मैं अभी ये लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ उसमें भी जो है मैं देख रहा हूँ कुछ पुरानी ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं। तो इन ट्यूबलाइट्स की जगह अगर हम एलईडी ट्यूबलाइट का यूज करें तो बिजली कंजम्पशन कम से कम होगा। तो लाइटिंग सिस्टम में ट्राई टू अवॉइड यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजीज इंस्ट्रूमेंट, we should use the latest technology equipment based on LED और CFL technologies। तो इस तरीके से भी हम इसको रिप्लेस करके, तो इसमें क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ट्यूबलाइट और बल्ब थे। ठीक है, तो इन टेक्नोलॉजीज के ट्यूबलाइट और बल्ब यूज करके भी हम काफी अपना एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पावर सिस्टम एंड मिसलेनियस सर्विसेज। और दूसरा हमारा जो पावर सिस्टम है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और मिसलेनियस सर्विसेज में क्या है कि बहुत सारी सर्विसेज हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं बिल्डिंग में, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइज करते हैं। तो बहुत जगह बिजली का जो है बचत हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। नाउ सर्वेइंग द बिल्डिंग, पहला पॉइंट था सर्वेइंग द बिल्डिंग। तो सर्वेइंग द बिल्डिंग जैसा मैंने बताया था, ए वॉक थ्रू सर्वे ऑफ बिल्डिंग में रिवील सेवरल एनर्जी conserving opportunities to the experienced eye of the auditor. The survey could be divided into three parts. First is preliminary survey. Preliminary survey जैसे बिल्डिंग में पहली बार गए घूम के देखने, तो उसमें क्या क्या करेंगे, prior to the walk through survey the auditor may need to know the building and the way it is used. The information can be obtained from the first time जो auditor हमारी बिल्डिंग में आ रहा है, तो ऑडिट जब फर्स्ट टाइम वो सर्वे करने जा रहा है तो उससे पहले उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो क्या क्या इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो लिखी हुई है। आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, जो आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है बिल्डिंग का वो उसको चाहिए। एयर कंडीशनिंग ब्लूप्रिंट्स, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल लाइटिंग एंड पावर ब्लूप्रिंट, यूटिलिटी बिल्स एंड ऑपरेशन लॉग्स फॉर द ईयर प्रीसीडिंग द ऑडिट, next air conditioning manuals and system data and building and plant operation schedule। तो जब भी कोई ऑडिटर एनर्जी ऑडिट करने हमारी बिल्डिंग में आ रहा है, जब पहली बार वो सर्वे करने जा रहा है, तो सर्वे करने से पहले ये इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे वो सर्वे करेगा, लाइक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, एयर कंडीशनिंग ब्लूप्रिंट, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग एंड पावर ब्लूप्रिंट, utility bills and operation logs for the year preceding the audit, air conditioning manuals and system data, and last is building and plant operations schedule. Next, walkthrough. Thus, having familiarized with the building, the walkthrough process could be relatively straightforward. If the blueprints and other preliminary information available describe the building and its operation accurately, the process could begin with a walk around the building to study the building envelope, building features such as building wall color, external sun shading devices, window screens and tint and so on are noted as possible EQs। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन सारे ब्लूप्रिंट उसको मिल गए तो वो जब सर्वे करने जाएगा तो इनके बेसिस पर वो सब कुछ सर्वे करेगा कि कितने एयर कंडीशन लगे हैं, बिल्डिंग का जो एनवेलप है, जो बिल्डिंग का आउटर लुक है, हम किस तरह का आउटर वॉल पे कलर यूज कर रहे हैं। अगर हम लाइट कलर यूज करेंगे तो हमें हीटिंग कम होगी, अगर हम डार्क कलर बाहर यूज करेंगे तो बिल्डिंग में हीटिंग ज्यादा होगी अंदर, तो उस हिसाब से हमें कूलिंग प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब हमें उसको मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे तो फिर वो जो वॉक थ्रू होगा तो इन सारी चीजों को नोट करेगा।
If a model analysis is included in the study, the building must be divided into zones of analysis. The survey inside the building would include confirmation that the air conditioning system is as indicated on plans. Addition and alteration would be noted. The type and condition of the windows, effectiveness of window seals, typical lighting and power requirements, occupancy and space uses are noted. This information could be compared against the recommendation in the relevant course of practices. जैसा मैंने पहले बताया था, जब वो सर्वे करने जाएगा तो बिल्डिंग में सारी चीजें वो देखेगा कि कौन कौन से एयर कंडीशन यूज हो रहे हैं, कितनी देर के लिए आपका एयर कंडीशन यूज होना जरूरी है, क्या आपका कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम कितना इफेक्टिव है, कूलिंग सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कर सकते हैं, हम ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी आपको दें, बताएं कस्टमर को कि कूलिंग सिस्टम में जो इनका कॉस्ट आ रहा है, जो एयर कंडीशन 8 आवर्स इनको चलाना पड़ रहा है, तो मान लो हम सुबह 9 बजे से शाम 4:30 या 5 बजे तक एयर कंडीशन चलाते हैं, तो हो सकता हो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज बताएं कि अगर आपके विंडो साइड में ग्रीन एनवायरनमेंट है और आपका आउटर वॉल पे लाइट कलर से आपने आउटर पेंट किया है, तो आपका जो वॉल है, वॉल क्या करेगा, हीट रेडिएशन जब होगा तो वो हीट कम से कम एब्जॉर्ब करेगा, और ग्रीनरी की वजह से आप चाहो तो 2 से 3 बजे के बाद ही आपको एसी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉन्सेप्ट वो निकल के आता है आफ्टर वॉक थ्रू सर्वे। अब नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स इनपुट। The auditor may discuss with the building maintenance staff further on the operating schedules and seek clarification on any unusual pattern in the trend of the utility bills. Unusual patterns such as sudden increase or decrease in utility bills could be caused by changes in occupancy in the building or change in the use of existing tenant. It is not uncommon for tenants to expand their computing operation that may increase the energy use significantly. तो जो ऑपरेटर होता है बिल्डिंग का, मान लीजिए आपने किराए पे किसी को रखा है, टेनेंट को रखा है, पहले कोई और रहता था, अब कोई और होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, पहले कम आता था अब ज्यादा आता है, तो उसको भी वो डिस्कस करता है। या जो कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती है, तो जैसे अपने यहाँ कॉलेज में क्या है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, तो वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से डिस्कस करेंगे कि भाई बिजली का बिल कितना आ रहा है और पहले कितना आता था, अब कितना आ रहा है लास्ट 6 मंथ में। तो ये पूरा सर्वे करके डिस्कस करते हैं और एनालिसिस करके वो जो भी ऑपरेटर मींस यहाँ पर हो गया इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में मेंटेनेंस स्टाफ, तो मेंटेनेंस स्टाफ से डिस्कस करते हैं और इस पे फिर वो रिजल्ट देते हैं। रिपोर्ट, तो इतना सारा काम करने के बाद फिर फाइनली वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं। एट दिस स्टेज energy conservation opportunities could be found in measures such as first one is reduce system operating hours, adjust space temperature and humidity, reduce building envelope gain, adjust space ventilation rates and building exfiltration. Next is review system air and water distribution, adjust chiller water temperatures and review chiller operation. तो ये सारा फिर वो चीज निकल के आता है जो वो रिपोर्ट देता है एनर्जी कंजर्विंग अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड। फाइनल में एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जो ऑडिटर आते हैं, तो जो ऑडिटर कंपनी होती है वो जिस भी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशनल रेजिडेंशियल बिल्डिंग का सर्वे करके फिर वो फाइनली एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करके लगभग इस तरीके के फॉर्मेट में वो रिपोर्ट देते हैं, अपने सजेशन देते हैं। वो सजेशन इस तरीके से हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही सजेशन हो, ये भी हो सकते हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ कम भी हो सकते हैं। कि रिड्यूस सिस्टम ऑपरेटिंग आवर्स, कि भाई आप अपने सिस्टम जो रिड्यूसिंग उनको आवर्स को रिड्यूस करिए। एडजस्ट स्पेस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, रिड्यूस बिल्डिंग एनवेलप गेन, आप जो बिल्डिंग का एनवेलप है जो आउटर एरिया है उसको उसको सुधार कर सकते हैं। एडजस्ट स्पेस वेंटिलेशन रेट्स एंड बिल्डिंग एक्सफिल्ट्रेशन, रिव्यू सिस्टम एयर एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, आप अपने बिल्डिंग का एयर एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। एडजस्ट चिलर वाटर टेम्परेचर, पानी ठंडा करने की जो टेक्निक है उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं।
and review chiller operation. So these are the overall point that an auditor can suggest to the building owner or ECO. So this is the end of unit 5 and the end of your syllabus 2.